A very good morning to all of you. This is Abhilasha Hata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 1 of your book, Indian Constitution at Work. And your chapter name is Constitution, Why and How. So, class, in our last class, what we discussed one of the feature or function of the Constitution, that is specification of power making decisions. Okay, so till now we have done with two of the functions of constitution. First one is assurance and coordination. It allows constitution allows assurance and coordination, and the second one is specification of power making decision. Now today we are going to start our new or next function of the constitution or feature of the constitution, that is limitations on the powers of the government. Okay, so now what is this? Limitations means कुछ ऐसी limitations या कुछ ऐसी breakages लगाती हैं powers में, government के powers में हमारा constitution, जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे कि गवर्नमेंट जो है स्मूथली रन कर सके, प्लस सिटीजन्स भी इजीली जो है उन्हें एक्सेप्ट कर सके. ओके, बट specification of power is not just in our last function we discussed the specification of power. That is the power to make laws and everything. Okay, our constitution is the power laws. Our constitution divided the government into different organs, everything. Okay, specified the functions of each and every organ of the government. But specification of power is not just government, not just enough. Okay, because there are some questions which also arises, like for example, your first is, this authority passed laws that you thought were patently unfair. Maybe ये जो authority है, जो ये पावरफुल बॉडी है, इसने ऐसे लॉज बना दिए जो आपको लगता है कि फेयर, क्लियरली, पेटेंटली मीन्स क्लियरली आपको लगता है कि अनफेयर है. इट इज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी एंड दीज लॉज आर लाइक अनफेयर. ओके, secondly, for example, it prohibited you from practicing your religion. For instance, for example, you want to practice religion A, but this government or this body is prohibiting you, banning you, abolishing you from practicing this religion. Okay, for example, you are not supposed to practice religion A, you are not supposed to practice religion B. Okay, so maybe ऐसा कुछ करें. Next, you are not free to sing certain songs or that people who belong to a particular group. Okay, if you are belonging to a particular group, for example, for instance, we take an example of scheduled caste and scheduled tribe. If you are belonging to a particular group, scheduled caste or scheduled tribe or whatever group you are belonging to, and this government is like prohibiting you, like you are not allowed to sing. ठीक है, कि आपको गाना गाना अलाउड ही नहीं है. ठीक है, आपको स्कूल जाना अलाउड ही नहीं है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना अलाउड ही नहीं है. ठीक है, अगर ऐसी चीजें करें, ये क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की पावर्स को हमने स्पेसिफाई तो कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कुछ ये सारी चीजें अगर हुई तो गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बना दिए, तो जैसे और भी एग्जांपल्स है, it enjoined that clothes of a certain colors were prohibited. You are not allowed to wear black color, you are not allowed to wear blue color, you are not allowed to wear green color clothes. ठीक है, if you are living in this country you have to wear only white color clothes. No, अगर ऐसी चीजें करेगी गवर्नमेंट,
It is not acceptable to us. It is not acceptable to the citizens of the country, right? Next, it would not be allowed to retain any property. Like certain groups or certain members of certain communities are not allowed to retain any kind of property. They don't have they can't own their own property. ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वो इस यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में लैंड नहीं ले सकते हैं, आपको फ्रीडम नहीं है, आपको लिबर्टी नहीं है कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की, ठीक है, अगर कुछ ऐसे लॉज बना दिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, always have to serve others. Some particular communities have to serve other, some like 7-8 decades ago, like हमारे इंडिया में या बोल सकते हो या वर्ल्ड की कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे ये चीजें चलती थी कि लाइक इफ यू आर बिलोंगिंग टू लाइक सर्टेन ग्रुप्स यू हैव टू सर्व अदर्स। या फिर हम आज से 1000 साल पहले भी देख ले तो हमें ये देखने को मिलता है कि 4 कम्युनिटीज में 4 वर्णास में हमें लोगों को डिवाइड कर दिया गया था, और जो शूद्रास है दे हैव टू सर्व पीपल ओनली, ठीक है, उनको सर्व ही करना है, वो राजा नहीं बन सकते, वो सैनिक नहीं बन सकते, या फिर वो रिचुअल्स मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने ये लॉ बना दिया, इफ यू आर बिलोंगिंग टू अ सर्टेन कम्युनिटी यू have to serve others, you always have to serve others, ठीक है। या उन्होंने बोल दिया गवर्नमेंट could arbitrarily arrest someone, arbitrarily मतलब that government is not morally responsible, ठीक है, उसके अंदर कोई मॉरल नहीं है, वो अपनी मनमानी कर रही है, ठीक है, दैट गवर्नमेंट की विदाउट एनी रीजन, ओके आपने आज व्हाइट कपड़े नहीं पहने, आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपने मुझे आप करके नहीं बोला, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, मतलब विदाउट एनी रीजन जो गवर्नमेंट अगर आपको अरेस्ट कर ले तो। या फिर ऐसा बना ओनली पीपल ऑफ अ सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, कि ऐसा लॉ बना दिया कि कुछ जो सर्टेन स्किन कलर के अगर जो गोरे लोग हैं वही खाली क्या कर सकते हैं, कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, या फिर खाली मेल्स जो हैं वो कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग हैं वही इस कुएं से पानी निकाल सकते हैं, अगर कुछ ऐसे लॉज बना दिए तो, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन, पावर को स्पेसिफाई करना कि किसके पास कितनी पावर है, कौन लॉज बना सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाई तो कर दिया कि जो पार्लियामेंट है वो लॉज बनाएगी, बट उनके ऊपर अनफेयरली मतलब अनफेयरली लॉ बनाई जा रही है जो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम रह ही नहीं पाएंगे उस सोसाइटी में, okay, so even though they were passed by a government that had come into existence based on certain procedures, there would be something obviously unjust about that government enacting these laws, ठीक है, क्या है हो गया, ठीक है, हमने जो लॉज गवर्नमेंट ने पास किए हैं वो एक सर्टेन प्रोसीजर से, कि हमने ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया और एक सर्टेन प्रोसीजर से ही हम क्या कर रहे हैं, हम अपने उस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, लॉज को पास किया है, ठीक है, बट वो लॉज इनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। तो क्यों, उसका क्या एक कुछ लिमिटेशंस, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस होनी बहुत जरूरी है गवर्नमेंट की पावर्स में, जिससे कि वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, ना ही ऐसे लॉज पास करे जो अनफेयर हो सोसाइटी के। ओके, सो आवर थर्ड function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them.
Okay, so this is the third function of our constitution or a constitution of any country. It has to set some limits कि क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या अपने सिटीजन्स पे इम्पोज कर सकती है, कैसे लॉज बना सकती है, उनमें कुछ लिमिट्स होनी चाहिए. एंड दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस लाइक बेसिक होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, मॉरली रिस्पॉन्सिबल लॉज होने चाहिए कि जिससे गवर्नमेंट जो है कभी भी अपना जो लिमिटेशंस हैं, जो एक बाउंड्री है उसको क्रॉस ना कर पाए. ट्रेसपास मतलब टू क्रॉस, कि गवर्नमेंट उस बाउंड्री को, उस मोरालिटी को कभी क्रॉस ना कर पाए. इसलिए हमें इन लिमिट्स को गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि गवर्नमेंट जो है या जो भी स्पेसिफाइड पावरफुल बॉडी है वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे और पेटेंटली अनफेयर लॉज जो है आर्बिट्रेरी इम्पोज ना कर दे. Okay, so this is our third function of the constitution. Now next function is, or your next topic is, before that, like we just look at the example of India. Like in India, constitution limit the power of government in many ways. Okay, India के example से भी लेते हैं. Like for example कि India में constitution में government की powers पे कैसे limitations लगाई हुई है. To specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens and which no government can ever be allowed to violate. ऐसे फंडामेंटल राइट्स को स्पेसिफाई कीजिए जिससे कि सिटीजन्स जो हैं, ठीक है, सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए. वी हैव फंडामेंटल राइट्स, वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. अंडर दैट वी हैव more of like more fundamental rights, right? So we have 6 fundamental rights. So constitution has to specify some fundamental rights on citizens through which government can never be allowed to violate. Government जिसे violate ना कर सके, ठीक है, ऐसे फंडामेंटल राइट्स को क्या करना चाहिए, सिटीजन्स के लिए पोजेस करना चाहिए, बनाने चाहिए. ये इससे गवर्नमेंट की पावर में क्या आएगी, एक लिमिटेशन लगेगी. The exact content and interpretation of these rights varies from constitution to constitution. अब जो ये हर एक कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे किस चीज की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी नीड लाइक कास्ट सिस्टम है, तो अनटचेबिलिटी की बहुत राइट टू अनटचेबिलिटी की बहुत जरूरी थी. राइट टू इक्वालिटी हमारा एक बेसिक फंडामेंटल राइट है और इस राइट की बहुत ज्यादा जरूरत थी हमें, बिकॉज वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, वी वर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, अनटचेबिलिटी वाला जो प्रॉब्लम है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स या क्या होंगे. जैसे कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में रेसिज्म बहुत ज्यादा फेस किया था टिल द ईयर 1994, जब साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ, साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिली. उससे पहले अफ्रीका ने देखा था वहां पे रेसिज्म बहुत ज्यादा फॉलो हो रहा था, ठीक है. तो वहां पे लॉ, जो ऐसा लॉ बनना चाहिए था जो रेसिज्म को क्या करे, अबॉलिश करे, रिमूव कर दे, ठीक है, रूट से ही रिमूव कर दे. तो एक ऐसे लॉ की जरूरत थी वहां पे. तो interpretation of rights varies from constitution to constitution. It is totally dependent on constitution, country to country, ki what type of constitution they need, what type of fundamental they need in their constitution. Okay, next, citizens will be protected from being arrested arbitrarily and for no reason. सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कि आप ऐसे ही सिटीजन्स को, आप पुलिस में हो और आपके पास पावर है और आपने क्या कर दिया, आपने उसे अरेस्ट कर लिया. नो, यू हैव नो राइट. और हम गवर्नमेंट में इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिमिटेशन लगा सकते हैं कि वो
अगर मॉरली राइट नहीं है तो यू आर नॉट अलाउड और यू कांट अरेस्ट सम पर्सन्स. ओके. Next, citizens will normally have the right to some basic liberties. Liberties means freedom. Okay. So, what are these? Freedom of speech. Citizens have the citizens have the freedom to express themselves. They have the freedom of speech, like right to express themselves. ऐसा नहीं है आप उसको रोक रहे हो, आप express नहीं कर पा रहे हो through through medias, through medias, through various newspapers, social medias. You are expressing yourself through folk songs, through poems, etc., etc. What you are doing? You are expressing yourself. Okay, so citizens should have some basic rights or basic freedoms like freedom of speech, freedom of conscience. What is freedom of conscience? Freedom of conscience means morally right, moral sense of what is right and wrong. कि आपके पास ये right होना चाहिए, freedom होना चाहिए कि आप morally उस चीज को देख सकें कि no, this is right for our society and this is not right for our society. ठीक है, तो क्या right है, क्या wrong है, फ्रीडम होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सर्टेन गवर्नमेंट उसने बोल दिया नो दिस इज रॉन्ग फॉर आवर सोसाइटी और आप भी बोल रहे हो हमारी गवर्नमेंट ने बोला है तो दिस इज रॉन्ग. You have the freedom of conscience कि आप morally खुद sense कर सको what is right and what is wrong. Okay. Next is freedom of associations. You have the you all are supposed to have that freedom of making your own associations, organizations. Like in India, we have linguistic associations, religious associations and organizations to preserve our language, to preserve our religion, to promote our religion. We have this freedom of making association. Okay. So citizens should have this freedom of association, and after that freedom to conduct a trade or business. You सिटीजन्स को ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो बिजनेस कर सके, ट्रेड कर सके. ऐसा ना हो कि नहीं आपको बस ये एक दुकान है, बस सर्टन 4 फैमिलीज है, बस ये 4 फैमिलीज ही आपके साथ ट्रेड कर सकती है. नो, आपको ट्रेड करना है. आप इंडिया के अंदर हमारे पास ये राइट है कि वी कैन मूव फ्रीली. ठीक है, move freely, we can practice, process, propagate any profession, right? So we should normally citizens should have this right or freedom to conduct a trade or to conduct a business. किसी भी बिजनेस को, किसी भी ट्रेड को, कोई ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, इंडिया के किसी टेरिटरी में करना है, दूसरे टेरिटरी, राजस्थान में नहीं महाराष्ट्र में करना है, महाराष्ट्र में नहीं तमिलनाडु में करना है, तो आपके पास ये फ्रीडम है कि आप कर सकते हो इजीली. ओके, सो दीज आर लाइक सम ऑफ द थिंग्स which limits the power of the government. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि गवर्नमेंट की पावर्स जो है लिमिट होती है. ठीक है, गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस लगती है. So these rights can be limited during times of national emergency, and the constitution specifies the circumstances under which these rights may be withdrawn. Okay, now there is an exception during times of national emergency. For example, 1970s में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही थी इंडिया की, उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगी थी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगी. तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या है, ये जो राइट्स है इन पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है सिटीजन्स पे. फॉर एग्जाम्पल्स लाइक लास्ट ईयर पैंडेमिक ईयर रहा है हमारा. ठीक है, अभी भी सिचुएशन ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है, इवन वर्स ही है, बट लास्ट ईयर फुली लॉकडाउन था.
we are not allowed to move from one place to another place. Like हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा सकते थे, ठीक है, आफ्टर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो एक काइंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी नहीं थी उस टाइम पे, बट इट वाज अ काइंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि उस टाइम पे नेशन के सब सिटीजन्स की बात थी, नेशन की बात थी. तो कुछ ऐसे टाइम आता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है. तो उस टाइम पे ये जो सिटीजन्स के राइट है वो विड्रॉ कर लिए जाते हैं, बट ये बस नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे. अदरवाइज यू हैव these rights of freedom, these rights and these liberties, to speech, to conscience, to make association, to conduct a trade, etc etc. For example, अभी जो है ट्रेड जो है रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है. रिस्ट्रिक्टेड कैसे कि आप 11 बजे तक इन राजस्थान, लाइक अभी क्या बोला हुआ 11 o'clock तक, अब अगर आपको जो वेजिटेबल्स लेनी है या जो भी आपको राशन लेना है आप ले लीजिए, बट आफ्टर दैट यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड फ्रॉम योर होम, राइट. तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ इमरजेंसी, बिकॉज ये पीरियड ऐसा चल रहा है. तो इस टाइम पे सिटीजन्स के जो राइट्स हैं ऐसी इमरजेंसीज के टाइम पे विड्रॉ कर लिए जाते हैं. ओके. otherwise these are like some of the rights which can limit the power of the government. Okay, so this is all about this function. Now our fourth function of the constitution is aspirations and goals of a society. Very important function of the constitution. What a society need, what are the desires of a society, what are the goals of a society. Society आपसे क्या expect कर रही है. Okay, so the Indian constitution was particularly innovative in expressing the aspirations and goals of society. ठीक है, बहुत इनोवेटिव रही है कि हमारी सोसाइटी को, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया था कि वो हर एक चीज को उन्होंने डिबेट किया, डेलिब्रेट किया, हर एक लॉ बनाने से पहले. ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब वो लिख रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखते टाइम उन्होंने हर एक चीज की जो है, हर एक चीज का ध्यान रखा, हर एक चीज को क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है, इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, हर एक चीज को बहुत डीपली इन्होंने डिस्कस किया, डिबेट किया, और हमारी सोसाइटी क्या है, सोसाइटी के डिजायर्स क्या है, उसको एक्सप्रेस किया थ्रू इंडिया, थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, so our societies with deep entrenched inequalities of various kinds will not only have to set limits on the powers of the government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome of inequality or deprivation. ठीक है, अब सोसाइटीज में, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया पावर्स को, स्पेसिफिकेशन के बाद हमने लिमिटेशंस भी लगा दी गवर्नमेंट की पावर्स में, बट उतना ही काफी नहीं है. सोसाइटीज अगर कुछ इनइक्वालिटीज फेस कर रही है तो वो गवर्नमेंट की पावर्स में लिमिटेशंस ही नहीं, या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज निकाल रही है जिससे कि सोसाइटी की जो डिजायर्स है या एस्पिरेशंस है वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, गोल्स फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो ऐसे स्टेप्स भी ले सकती है सोसाइटी जिससे कि वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती है कुछ पॉजिटिव मेजर्स लेने के लिए, जिससे कि जो डेफिशिएंट, जो भी सोसाइटी में आप बोल सकते हो उत्तेजना, ठीक है, सहन की जा रही है, या फिर जो इनइक्वालिटी फेस की जा रही है, जो इनइक्वालिटी देखी जा रही है, उसको ओवरकम करने के लिए सोसाइटी गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती है. यू हैव टू टेक सम पॉजिटिव मेजर्स टू ओवरकम दीज इनइक्वालिटीज. वो जो सोसाइटी अपने डिजायर्स को, गोल्स को फुलफिल करवाने के लिए ये स्टेप भी ले सकते हैं. तो एस्पिरेशंस, एक सोसाइटी की एस्पिरेशन भी बहुत, एस्पिरेशन क्या है, गोल क्या है, उसे समझना भी बहुत जरूरी है. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सोसाइटी के एस्पिरेशंस को, गोल्स को, लाइक इन इंडिया वी वांट अ सोसाइटी
we want a society that is free of caste discrimination, free from caste discrimination. एक ऐसी society की जरूरत थी. तो this is society's aspiration. Other than that कि government जो है caste discrimination में कुछ काम ही नहीं कर रही है, ठीक है, caste untouchability पे कुछ काम ही नहीं कर रही है. But हमारा जो aspiration था, हमारा desire क्या था, ठीक है, हम क्या चाहते थे, हम तो कास्ट डिस्क्रिमिनेटेड फ्री हमें इंडिया चाहिए ना. तो इंडिया ने क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने ये चीज इंक्लूड की इन द मेन की सोसाइटी की जो एस्पिरेशन है वो है कास्ट फ्री, कास्ट डिस्क्रिमिनेटेड फ्री सोसाइटी होनी चाहिए. तो गवर्नमेंट विल हैव टू बी इनेबल्ड और empowered to take all the necessary steps to achieve these goals. Now, it is the duty of government to make laws, to launch some programs and policies to achieve these goals. ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एस्पिरेशन को, इस डिजायर को, सोसाइटी के इस गोल को फुलफिल करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ले, कुछ ऐसे लॉज बनाए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिससे कि हम ये डिस्क्रिमिनेशन, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी बना पाए. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मिड डे मील स्कीम लॉन्च हुई थी. तमिलनाडु जो है फर्स्ट स्टेट हुआ था, 2000 में हुआ था ये, 2001 में आई थिंक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम लॉन्च की. और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस चीज को ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट करवा दिया था आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. क्यों? मिड डे मील स्कीम्स में क्या होगा, एक तो बच्चों का जो एजुकेशन है वो फुलफिल हो पाएगा, ठीक है, बच्चे पढ़ने के लिए खाने के चलते ही सही, ठीक है, खाने के लालच में ही सही, बट बच्चों की जो स्कूल अटेंडेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, स्कूल अटेंडेंस इंक्रीज होगी. प्लस जो मिड डे मील स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट मिली थी वो किससे मिली थी, खाना बनाने का, टू कुक फूड. द एम्प्लॉयमेंट टू दलित वुमेन got employed to cook food under मिड डे मील स्कीम्स. कि मिड डे मील स्कीम्स के अंदर जो खाना बनाएगी तो वो कुक कौन होगी, दलित वुमेन होगी. गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था, ये पॉलिसी ही बना दी थी कि दलित वुमेन को ही एम्प्लॉय करना है. तब वहां पे खाना तो अपर कास्ट लोअर कास्ट सब बच्चे खाएंगे. तो ये एक इक्वालिटी का सेंस आएगा इसमें कि इक्वालिटी डेवलप होगी. तो ये एग्जाम्पल देखा कि कैसे इंडिया ने इक्वालिटी लाने के लिए, ये एक स्टेप है कि इक्वालिटी लाने के लिए ये चीज की. सेकंड, इंडिया ने रिजर्वेशंस भी की थी. इंडिया में हम रिजर्वेशंस देखते हैं, वो रिजर्वेशंस क्यों है, जस्ट बिकॉज हम कास्ट को एग्जिस्ट ना रहे, ओके, इक्वली ट्रीट करें हम उन्हें. That's why reservation is there. Okay, so these are some of the, like, you can say, policies or programs launched by the government. Why government is launching these programs or policies? To fulfill this aspiration of society, government has to take steps according to it. Okay, now take an example of South Africa. Deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination. ठीक है, I already gave you this example. साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा फेस किया गया था, बहुत टाइम तक फेस किया गया था. सो जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था आपका साउथ अफ्रीका का, उस गवर्नमेंट ने, वहां की गवर्नमेंट का जो, वहां की सोसाइटी का जो एस्पिरेशन था वो क्या था, क्या है इवन, कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रेशियल इनइक्वालिटी फ्री साउथ अफ्रीका, हमारी कंट्री जो है रेशियल इनइक्वालिटी फ्री होनी चाहिए. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. The Constituent Assembly thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and self-respect. That is, minimum material well-being, education, food, etc. So जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है सोसाइटी के हर एक इंडिविजुअल के बारे में सोचती है और ये
चाहती थी कि सोसाइटी का हर एक मेंबर जो है उसको एक मिनिमम डिग्निटी, लाइक एक डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो है लाइफ मिली, ठीक है। बिकॉज इफ वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास और कास्ट और रिलीजन, वी आर violating their dignity, we are violating their dignity. So our constituent assembly wanted a nation जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक मिनिमम डिग्निटी वाली लाइफ मिले, लाइक कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज दी जाए, डिसेबिलिटी उनको फेस ना करना पड़े, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, या आप बोल सकते हो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें फेस ना करना पड़े, ठीक है। So the Indian Constitution enables the government to take positive measures, some of which are legally enforceable, ठीक है। कुछ आपके जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को पॉजिटिव वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ मेजर्स जो है लीगली इन्फोर्स किए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और गवर्नमेंट को उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है, और गवर्नमेंट उन्हें अमेंड भी नहीं कर सकती है। व्हाट आर दीज फंडामेंटल राइट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंशन द फंडामेंटल राइट्स फॉर द सिटीजन, and secondly DPSP. We will talk about fundamental rights and DPSP in our next chapter very elaborately. Okay, fundamental rights, you all are aware about it. Fundamental right to equality, 6 fundamental rights are there to protect the citizen, these fundamental rights are mentioned in our constitution. And the second one is DPSP, directive principles of the state policy. These are the guidelines given by the constituent assembly कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो वो चीजें, सारी चीजें इंक्लूड करना या फिर सोसाइटी में लाना पॉसिबल नहीं था, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये चीज बोली कि जब थोड़ी सिचुएशन बेटर होगी, स्टेबल होगी, देन आप ये जो पॉलिसीज हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वाज नथिंग बट the guidelines given by the Constituent Assembly. So the fourth function of the Constitution is to enable government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society. कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट को एक पावर देता है, या गवर्नमेंट को फोर्स करता है, आप बोल सकते हो, कि हम सोसाइटी के एस्पिरेशंस को, डिजायर्स को वो क्या करे, फुलफिल करे, और ऐसी कंडीशंस एस्टेब्लिश करे जिससे कि ये एस्पिरेशंस जो है फुलफिल हो सके। इवन ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिससे कि सोसाइटी जो है एक अच्छी सोसाइटी हम बना सके। ओके, so this is all about today class. Thank you everybody for joining the class. Go through the topics, and if you face any problem, do ask me in my next class, or you can message me or call me. Thank you so much. Bye bye. Take care of yourself.